So, welcome in the Class 9 IFM series. Today we are on Unit 2 Money Exchange Systems. So, let's begin. Money is used as a medium of exchange for goods and services. Money is anything that is commonly accepted by a group of people for the exchange of goods, services, or resources. Every country has its own system of coins and paper money. When you go out to a shop, you exchange money with the shopkeeper for books, pencils, games, clothes, etc. Money is used as a medium of exchange between the buyer, you, and the seller, the shopkeeper, for goods purchased. But was it always like that? That people always use money as a medium of exchange? Not always. There were times during the early periods of civilization, societies engaged in what is called as barter system. So ये हम last chapter में पढ़ा था. It's just a recap of it. ठीक है, तो bartering and commodity money. People in early civilization were not preoccupied with the thought of money. ठीक है, पहले तो पता ही नहीं था लोगों को कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि we will use पेपर्स एंड कॉइन्स, या फिर अब तो ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन चल रहा है, ये होगा मनी के नाम पे, क्योंकि वो तो बार्टर सिस्टम करते थे ना, रेड बॉटल के बदले में रेड बॉटल, black bottle, sorry. People in early civilization were not preoccupied with the thought of money. They were too busy worrying about survival, food, clothing, shelter. But over time, people and societies sought ways to improve their economic lot in life. They sought ways to produce more and better goods and services and to produce them efficiently so that better use was made of resources. As a result of this search for better ways, evol- uh, a majority evolution occurred, specialization. Rather than trying to do everything independently, people began to specialize, perhaps in house building or clothing or food production. Through specialization, people's skill improved, enabling each person and hence the society to produce more things of बेटर क्वालिटी. तो स्पेशलाइजेशन में क्या हुआ कि पीपल, पहले लोग क्या करते थे, सारा काम खुद से करते थे, सब एकदम इंडिपेंडेंट बने हुए थे, ये करना है, कपड़े धोने हैं, बट खाना बनाना है, सब खुद से करेंगे, ठीक है. कुछ भी काम होगा सब, घर बनाना है, कपड़े बनाने हैं या खाना बनाना है, सब खुद से करते थे. फिर इनने बाद में क्या सोचा कि नहीं, एक एक काम सब पकड़ लेते हैं और वही काम सब करेंगे. जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मैं सबके यहाँ खाना बना दूंगी, कोई कपड़े धो रहा है तो सबके यहाँ कपड़े धो देगा. तो ऐसे लोगों ने, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने अपना स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किया. ठीक है, देन थ्रू स्पेशलाइजेशन पीपल की स्किल जो थी, स्किल इंप्रूव हो गई, बहुत फोल्ड्स में इंप्रूव हुई, लाइक थोड़ी बहुत नहीं. तो ये रिपीट हो गया है, पीपल स्किल इंप्रूव्ड, enabling each person and hence the society to produce more things of better quality. उसके बाद अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि as specialization occurred and each person focused on his, सुनना ध्यान से, on his or her economic activity, on producing only one or few things. Another challenges arose if individuals specialized in one or few areas of production. How were they to acquire the other things that we needed and wanted? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया ये मैं बता चुकी. सपोज मैंने स्पेशलाइज किया कि मैं रेड बॉटल्स बनाऊंगी, बट अब किसी को तो, मेरे को ब्लैक बॉटल भी तो चाहिए ना. सपोज बहुत, ये दोनों बॉटल्स बहुत बेसिक है मेरे सर्वाइवल के लिए, तो रेड बॉटल तो मैं बना रही हूँ, बट आई इवन नीड द ब्लैक बॉटल. तो अब कैसे मैं करूँगी, मेरे को तो सिर्फ रेड बॉटल बनाना आता है. तो आंसर इज ट्रेड. ठीक है, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज द नीड ऑफ ट्रेड. अगर स्पेशलाइजेशन है तो ही ट्रेड है, और ट्रेड है तो ही स्पेशलाइजेशन है. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो इससे क्या हुआ कि अब ट्रेड बन गई, स्पेशलाइजेशन भी हो गई. तो स्पेशलाइजेशन रिजल्ट्स इन अ पर्सन बीइंग एबल टू प्रोड्यूस more than he or she needs or wants of a particular goods and services. There are surplus beyond the personal household need. The surplus is then available to trade in order to acquire goods and services.
एंड प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स। तो ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि एक इंसान इतना केपेबल बन गया कि जितना उसे चाहिए, मेरे को जितनी रेड बॉटल एक ही चाहिए ना, बट मैं 5 बना लूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, इन्हें दूसरों को बेच दूंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास पैसे आएंगे, उस पैसे से अब मैं दूसरों से ब्लैक बॉटल्स जो बना रहे हैं मैं उनसे ब्लैक बॉटल्स खरीद लूंगी, क्योंकि उनको भी एक ही चाहिए थी पर उनने 5 बना ली, तो एक वो मुझे दे सकते हैं, बेच सकते हैं बाय ट्रेड। ठीक है, तो द मोर प्रोडक्टिव द फार्मर द ग्रेटर द सरप्लस। जितना ज्यादा काम एक इंसान करेगा, जितना प्रोडक्टिव होगा, उतना ज्यादा सरप्लस हो जाएगा। द ग्रेटर द सरप्लस द मोर फार्मर कैन एक्वायर फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब मैं जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, जितनी ज्यादा रेड बॉटल्स बना रही हूँ, उतना ही मेरे को बेनिफिट होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा मैं रेड बॉटल्स बनाऊंगी, मेरे को उतने पैसे मिलेंगे, उस बेसिस पे मैं दूसरों से ब्लैक बॉटल्स खरीद पाऊंगी। राइट, so specialization means becoming more skilled and can produce more। ठीक है, now listen, मैं specialization की definition बताती हूँ, what you have to write in exam, just note it down somewhere, same लिख के आ जाना, marks मिल जाएंगे। so points में लिखना, 3 points है। first is specialization is a process of enhancing one's skill and mastering a particular art। second is here, so this is through specialization, people's skill improved, enabling each person and hence the society to produce more things of better quality। And third, ये वाली है, specialization means people become more skilled and can produce more। ठीक है, अब ये है wheel of economic progress। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, ब्लैक कलर, सॉरी, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वो हार्ड वर्क ही पे ऑफ करेगी, उसी से ओफो इनोवेशन होगा। ठीक है, फिर वैसे ही इन्वेंशन, जैसे इनोवेशन वैसा इन्वेंशन, इन्वेंशन हुआ तो क्रिएटिविटी भी आएगी। सो व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, हार्ड वर्क, देन इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी एंड अगेन हार्ड वर्क। ओके, मूविंग फर्दर, the wheel of economic progress began to turn, innovation, invention, creativity and hard work in this way। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पेशलाइजेशन और ट्रेड से क्या होता है, मोर इज प्रोड्यूस, बेटर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, अच्छी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सोसाइटी के बढ़ रहे हैं। स्पेशलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। ये सेल्स में भी होता है ना, सेल्स में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि सब सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शंस अपना ले लेते हैं। ये सेल होंगे जो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी में हेल्प करेंगे, ये सेल कुछ और कर रहे हैं, ये वाला सेल। तो ऐसे डिवीजन ऑफ सेल्स की जगह यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। ठीक है, तो दैट इज द लेबर बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड कैन concentrated on certain activities। ठीक है, तो rather than trying to do everything or many things, a person concentrates on his or her labor skills on one activity or just on a few activities। ठीक है, फिर अब क्या हो रहा है कि in our early history the degree of division of labor was limited। ठीक है, तो division of labor बहुत limited था। क्यों, अब हर चीज का रीजन होता है, तो इसका भी एक रीजन है क्यों लिमिटेड था, क्योंकि रिलेटिवली फ्यू प्रोड्यूसर्स थे, बहुत कम लोग थे जिनको सामान बनाना था, और लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी। तब थोड़ी पिंक बॉटल, रेड बॉटल, ग्रीन बॉटल, पर्पल बॉटल थी, तब सिर्फ ब्लैक बॉटल और रेड बॉटल थी। ठीक है, फिर ओवर टाइम मोर प्रोड्यूसर्स एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज हैव enabled increased division of labor and more opportunities for specialization। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखो, अर्ली हिस्ट्री में डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता था कि अगर आपको कपड़े बनाने हैं तो कपड़े में एक वीवर होंगे, वो कपड़े वीव करेंगे, फिर एक प्रिंटर होंगे, वो उन पर अच्छे अच्छे प्रिंट्स बनाएंगे। बट व्हाट अबाउट नाउ, इतना इजीली हो जाता है? नो, वी हैव दिस बिग टेबल, प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं, फिर वो कपड़े वहाँ पे वीवर्स, प्रिंटर्स, डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ठीक है, वीवर्स भी दो प्रकार के होते हैं, या तो हैंडलूम में करते हैं हैंडमेड, या फिर मशीन में करते हैं तो मशीन मेड कपड़े बनते हैं। प्रिंटर्स क्या करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। डिजाइनर्स भी वही, कोई कपड़ा क्यों खरीदेगा यार ओल्ड फैशन, तो डिजाइनर्स भी लेटेस्ट ट्रेंड करते हैं। फिर वो जाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। अब वो क्या करती है, मेंस वेयर एंड वुमेन्स वेयर में आ जाती हैं। रेडीमेड गारमेंट्स वो बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कुर्ता, शर्ट, स्कर्ट्स, फ्रॉक्स एंड चूड़ीदार। तो सो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन
ऑफ लेबर आर कंटिन्यूअस। क्या पता आगे के टाइम पे और नई चीज आ गई, ये टेबल और बड़ी हो जाए, इवन इतनी बड़ी कि एक पेज में ही ना फिट हो, राइट? Then we have कि when the Europeans came first to North America, many hundred years ago, they discovered that red Indians, जो यहाँ के original inhabitants थे, उनको they used to call red Indians, ठीक है, were already very adept and skillful at trading. अब देखो इंडियन दिमाग, यू नो इंडियंस आर वेरी जुगाड़ू, तो ये बड़ा बढ़िया ट्रेडिंग करते थे। ये किसने देखा? यूरोपियंस ने देखा। they were particularly good at hunting and were able to kill animals and obtain fur beyond their need. अब इनने क्या किया? स्पेशलाइजेशन किया किस चीज में? हंटिंग में। तो इतना हंट कर पा रहे थे कि इतना ज्यादा फर बन रहा था कि उनको जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा फर बन रहा था, ठीक है। तो दे कुड देयरफॉर प्रोवाइड्स फर विद यूरोपियंस। तो अब क्या हुआ कि हाँ, अब ये यूरोपियन को फर देंगे, यूरोपियंस इन्हें पैसे देंगे जिससे ये अलग चीजें खरीद सकते हैं। सो यूरोपियन गेव डिफरेंट गुड्स, देखा बार्टर सिस्टम था, तो ये फर देते थे और रिसीव्ड डिफरेंट गुड्स, ठीक है, फर में के बदले, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें चलती गई। तो अब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे बार्टर की डेफिनेशन है कि barter is the exchange of a good or services for another good or services, like a bag of rice for wheat. An economy based on this method exchange is referred to as barter system. मुझे रेड बॉटल चाहिए तो मैं ब्लैक बॉटल चाहिए, मैं तुम्हें रेड दूंगी, तुम मुझे ब्लैक देना। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर इज अ टाइप ऑफ ट्रेड दैट डज नॉट यूज एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। पैसे का कोई रोल नहीं है, ना यहाँ पे कॉरी शेयर्स होंगे, ना वैम्पम्स होंगे, एरो हिंट्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं है। सॉल्ट, टबैको, शुगर, कॉफी, कुछ नहीं, वीट, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये है कि हाँ, ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए मुझे, मेरे पास ये, तुम्हारे पास ये, तो ये ले लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे को ब्लैक बॉटल चाहिए, मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो मेरे को ब्लैक बॉटल दोगे क्या? दिस वोंट वर्क इन बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब तो वैसे यूज नहीं होता। So barter is the type of trade that does not use any medium of exchange. There is no money exchange between the buyer and the seller. बायर और सेलर के बीच में बिल्कुल मनी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। Also, as long as the output of the economy is made up relatively few goods and services, this type of system can function successfully. जब इकोनॉमी ऐसे कि बहुत थोड़े से गुड्स एंड सर्विसेज है भाई, पुराने टाइम में क्या होता था? वी जस्ट नीड ऐसी चीजें जिनसे हमारा रोजमर्रा का काम चल रहा था। भाई तुम्हें चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब तो चाहिए। कौन सा तुम कह रहे हो कि नहीं भाई मेरे को स्मार्टफोन भी चाहिए और मैं ऐसे थोड़ी चलूंगा, भाई मेरे को तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये सब थोड़ी होता था। तो अब तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, तो एक चीज दूसरे के पास अवेलेबल मिल ही जाती थी। ऐसे सिनारियो में बार्टर सक्सेसफुली फंक्शन करता था। However, as society advances and much great volume and diversity of output is produced, bartering becomes very complicated and cumbersome. तो अब पार्टनरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कैसे हो गई कि अब तो तुम्हें भाई ब्रांडेड कपड़े चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम किसी भी चीज से काम चला लोगे। तो अब तो बार्टरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें वही चाहिए जो नया बना है। मनीष मल्होत्रा ने नया लहंगा बनाया है, बट अब मनीष मल्होत्रा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए ना। तो कैसे होगा बार्टर सिस्टम? तो वी यूज मनी। What if you could agree what something was worth in exchange, or you don't didn't want the other person had? Exactly, यही मैंने अभी मनीष मल्होत्रा का बताया। To solve that problems, human developed what is called commodity money, like salt, tea, tobacco, etc. ठीक है। तो यहाँ पे फिर इनने बनाया कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या है? बेसिक आइटम है, यूज बाय ऑलमोस्ट एवरीवन इन द पास्ट। सॉल्ट, टी, टबैको, कैटल, ये सब क्या एज मनी यूज होते थे, इन्हें लोग एक्सचेंज करते थे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हाउएवर यूजिंग कमोडिटीज एज मनी हैड अनदर प्रॉब्लम्स। अब कैरिंग, अब इतने बड़े बड़े नमक के वो उठाना तो मुश्किल हो जाएगा ना, तुम्हें बाहर जाने सामान खरीदने। अब तो तुम अपना फोन उठाते हो, यूपे कर देते हो, बट उस टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और स्टोर एंड वर पेरिशेबल, so people therefore starting metal, using metal objects as coins, later paper money. These were made convenient than salt, tea and seeds. फिर आए कॉइन्स एंड पेपर मनी। अब देखो यहाँ पे बार्टर सिस्टम का इफेक्टिवनेस दिखाया है। इसके पास पीनट है, इसके पास कोम है। विल द बार्टर सिस्टम वर्क नाउ? हाउ फनी, यू ऑलवेज डोंट नीड what offers you
what others offer you sorry and vice versa. इसको पीनट्स चाहिए होंगे बट इसको कंघा नहीं चाहिए, ठीक है। एंड नाउ वी कम टू कॉइन्स एंड पेपर मनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मनी इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी ऑफ यूनिट ऑफ एक्सचेंज, no, sorry, modern money many thousand years ago, probably around 5000 BCE. By 700 BC, metal coins were introduced as money. तो कहाँ पे 5000 BC से 700 BC में मेटल मनी को कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। मेटल वाज यूज्ड बिकॉज इट वाज रेडिली अवेलेबल, हर जगह मिल जाता था मेटल, तो इसको फिर बना लिया था और रिसाइकल भी हो जाता था। वी ऑल्सो पे इन फिर अब ये रिसाइकल भी हो रहा है तो वाओ बहुत अच्छी बात हो गई है, ठीक है। सिंस कॉइन्स वर गिवन अ सर्टेन वैल्यू इट बिकेम इजी टू कंपेयर एंड कॉस्ट देम, कॉस्ट ऑफ द पीपल वांटेड। तो अब मेरे पास कॉइन्स है 1 रुपए का 2 रुपए का, मेरे को तुम्हें 3 रुपए देना है तो मैं 1 रुपए का 2 रुपए का दे दूंगी। अब मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम्हें रेड बॉटल चाहिए मेरे को ब्लैक बॉटल चाहिए, बट ब्लैक बॉटल हैवी है, ब्लैक बॉटल का रेड बॉटल लाइट है, तो रेड बॉटल ब्लैक बॉटल मेरे को एक्सचेंज करने में कोई फायदा नहीं है, राइट। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे some people of the earliest known paper देखिए चाइना में क्या होता था कि पेपर मनी earliest known dates back में चाइना में था, where the issue of paper money became common from AD 806 onwards. Paper money and are notes with standardized characteristics issued as money. China experienced over 500 years of early paper money spanning from 9th century to the 15th century. ठीक है, तो कब से 9th century से 15th century तक, beginning of 1455 में चाइना में पेपर मनी था। Now we come to modern currencies. Modern currencies में क्या होता है, also called currency or unit of exchange. So money is also called currency or a unit of exchange, ठीक है। और in India the currency we use is called Indian rupees. अभी हम सबकी करेंसीज पढ़ेंगे आगे। पैसे which are called fractional rupees, तो 1 रुपये का फ्रैक्शन में आता है पैसे, ठीक है। So just as India views Indian rupees, different countries have different currencies. In each country, the currency of the country is used by people for purchasing goods and services. Now, अब interesting आया। अर्जेंटीना में we use Argentine peso, ऑस्ट्रेलिया में Australian dollar, ब्राजील में Brazilian real, कनाडा में Canadian dollar, चाइना में Chinese yuan, फ्रांस में यूरो, जर्मनी में भी यूरो, ये सेम है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इंडिया में वी नो इंडियन रुपी, ब्रिटिश का भी पता है, पाउंड, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर। अब साइंस याद कर लेना, ये देख लेना किस किस के सेम है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एंड देन नीचे आके यूनाइटेड स्टेट्स का सेम है, देन ये दोनों यूरो वाले सेम है, फ्रांस एंड जर्मनी। इंडियन रुपीस का ये है, ये होता है पाउंड, दिस इज यॉन एंड दिस इज ब्राजीलियन रियल। समरी पे आ जाते हैं। मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। स्पेशलाइजेशन लीड टू ट्रेड एंड brought about concepts of division of labor in introducing variety. Metal coins were introduced as paper money, currency reappeared, ठीक है। different countries have different currencies. Indian currency is called rupee. अब यहाँ पे keywords में ही हमने last chapter में भी पढ़े हैं, BCS before Christ, ADS anno domini. With this, we are done with the chapter. We'll do the next chapter in the next video. Thanks for watching. Yo.